An evening of timeless melodies, cherished memories and heartfelt gratitude celebrates the enduring legacy of Krishna Kumar Malia. The evening saw the presence of Sudesh Bhosle, Madhushri, Kumar, Soumya Tandon, Abu Malik, Dev Negi, Nasir Khan, Supriya Pathak, Sneha Shankar, Ram Shankar, Arvinder Singh, Prashant Virendra Sharma, Abhinandan Singh, Saveri Verma, Sanjay Tandon, Raja Sagu, Rashmi Arya, Siddharth Sibal, many more. Celebrated playback singer Shahid Malia presented the second season of Ek Sham Krishna Kumar Ke Naam, a tribute of love to my father, a legacy that lives on, delivering an emotionally charged musical evening dedicated to the memory of his father, Krishna Kumar Malia. The musical evening became a celebration of love, gratitude and the unbreakable bond between a father and son, leaving audiences deeply moved. Born into a family where music was a way of life, Shahid inherited a rich artistic legacy from his father. Growing up surrounded by classical and devotional music, he learnt the nuances of melody, expression and performance under Krishna Kumar Malia's guidance. Those early lessons eventually paved the way for Shahid to become one of the most celebrated voices in contemporary Indian playback music. Throughout the evening, Shahid revisited timeless melodies while sharing memories that reflected his father's immense influence on his life and career. Every performance echoed the values, discipline and musical sensibilities passed down by Krishna Kumar Malia, making the concert a deeply personal yet universally relatable experience for everyone present. Following the overwhelming response to the inaugural edition, Season 2 elevated the tribute with an intimate blend of soulful performances, nostalgia and storytelling. The audience witnessed not only a musical concert but a heartfelt celebration of a legacy that continues to inspire through generations. The evening concluded with a standing ovation as audiences applauded not only Shahid's soulful performances but also the beautiful sentiment behind the concert. Ek Sham Krishna Kumar Ke Naam, a tribute of love to my father, a legacy that lives on. Season 2 emerged as a touching reminder that while an artist may leave the stage, their music, teachings and legacy continue to resonate through every generation they inspire. सबसे पहले आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया। हमेशा हमारे लिए सपोर्ट करते हैं और आप सबका स्वागत है एक शाम कृष्ण कुमार के नाम, मेरे पापा के नाम। तो वो साथ मानते हैं रफ़ी साहब को अपना, और हमारे पास रफ़ी साहब ही एक दौलत है, विरासत है, जिसको हम सुन सुन के सीखते रहते हैं और गाने की गुस्ताखियाँ करते रहते हैं। तो अभी 31 जुलाई को रफ़ी साहब की बरसी थी और 1 अगस्त को पापा का जन्मदिन है। तो आज 2 अगस्त को हमने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा म्यूज़िकल करें जिसमें रफ़ी साहब को भी याद करें और पापा के जो फेवरेट सॉन्ग्स हैं रफ़ी साहब के, उनमें से कुछ गाने हम, वैसे तो रफ़ी साहब के सारे गाने खूबसूरत हैं, कौन सा गाएं कौन सा नहीं गाएं, तो उनके कुछ फेवरेट हम आज यहाँ पे पेश करेंगे, गुस्ताखी करेंगे गाने की। और इसलिए हमने इसका नाम रखा कि एक शाम सलीम कृष्ण कुमार के नाम। एंड लेगेसी है रफ़ी साहब, कृष्ण कुमार, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके म्यूज़िक को आगे तक कहीं ना कहीं पहुँचाऊँ। पापा का फेवरेट बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, उनमें से कुछ हैं जैसे रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, मैनी मोर सॉन्ग। बिल्कुल, क्योंकि मैं बचपन से रफ़ी साहब को सुनते सुनते बड़ा हुआ हूँ, बिकॉज ऑफ पापा। क्योंकि पापा ने जब बॉम्बे में स्ट्रगल करना छोड़ा बिकॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट जो 90s में उनके साथ हुआ था, जिसकी वजह से वो 6 साल बेड पे थे, तो बॉम्बे आने का एक हौसला नहीं था वापस से स्ट्रगल करने का। यहाँ की बड़ी मुश्किल लाइफ है। तो वो हमें रफ़ी साहब के किस्से बताते थे, बहुत सारी बातें, कि मैं उस्ताद जी से कैसे बात करता था, कैसे उनके पास मिलता था, कैसे हम उनके आसपास रहते थे। वो हज़ारों किस्से उन्होंने बताए, जिसमें से एक किस्सा ये है कि
उनका एक हारमोनियम आज हमारे पास में है, जो पापा ने उनसे कहा कि उस्ताद जी मेरे पास रियाज़ करने के लिए कुछ है नहीं हारमोनियम, तो उन्होंने उनको एक पापा को एक हारमोनियम गिफ्ट किया, जो आज हम यहाँ पे लेके आए हैं। और जब मैं दुनिया में आया तो पापा ने फिर से एक सवाल किया रफ़ी साहब से, जी लड़का हुआ है, क्या नाम रखें, हमारे बच्चे का नाम बताइए आप। तो उन्होंने कहा कि जी बड़ा मुश्किल सवाल है, आप एक काम करें कि जो मेरे बेटे का नाम है आप अपने बेटे का नाम रख लीजिए। तो उनके साहबजादे शाहिद रफ़ी साहब हैं। खैर हमारी इतनी औकात नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली उनका आशीर्वाद और प्यार मिलना अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि मैं भी उनके बेटे का नाम शेयर करता हूँ शाहिद। बहुत खुश हूँ कि शाहिद बहुत अच्छा बेटा है और उन्होंने अपने पिताजी के लिए ट्रिब्यूट ऐसे म्यूजिकल इवनिंग बनाया है। इट्स अ ग्रेट थिंग। हर बेटे को, हर बच्चे को अपने पिता माता के लिए ऐसे प्रोग्राम करना चाहिए, खास करके उनके पिता बहुत अच्छे सिंगर थे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ ग्रेट थिंग। कहना चाहूंगा, किशन कुमार जी हमारे एक परिवार के सदस्य हैं। शाहिद मालिया हमारे घर का बेटा है और बहुत ही खुशी की ये बात है कि चंद सालों पहले जब ये यहाँ मुंबई आए थे तो एक ख्वाब लेके जब इंसान आता है, मतलब जैसे किशन कुमार जी सन 70-80 के दशक में आए थे तो रफी साहब से मिले भी थे वो और दुआएं मिली थी, मगर कुछ बन नहीं पाए। मगर देखिए अल्लाह ताला का करम देखिए, ऊपर वाले का करम देखिए, भोले की कृपा देखिए कि उन्हीं का बेटा आज, मतलब किशन कुमार जी का बेटा सुपरस्टार है एज ए सिंगर। और हम सबको खुशी की बात है कि आज वो अपने पिताजी के नाम से ये बहुत बड़ा शो किया उसने, इतने बड़े चैनल के सब सरताजों को बुलाया और हमारी सुपरस्टार को यहाँ पे बुलाया इसने। जैसे फादर साहब के भी नहीं है, मेरे भी नहीं है। जब ये कुछ ऐसा फंक्शन करता है कि बिल्कुल लगता है मेरा भी कोई भाव कनेक्ट हो गया। लेजेंड, आई थिंक ये शब्द मुझे बहुत इरिटेट करता है। मुझे लगता है अभी खेलते कूदते रहो, दीवारें फांदते रहो, कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, थैंक यू। मैं शाहिद भाई को तकरीबन 15 सालों से जानती हूँ, सिंस आई वाज अ लिटिल गर्ल। मैं नई बॉम्बे में आई थी, तो तब से मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ और मैं हर साल आती हूँ अंकल के फंक्शन में एंड इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी। that शायद भाई डूइंग समथिंग लाइक दिस एंड बहुत अच्छी बात है कि ये कर रहे हैं। मैं पिछले साल भी था, ये साल भी आया हूँ एंड रफ़ी साहब का भी नाम जुड़ा है। तो रफ़ी साहब के साथ तो एक फैमिली रिलेशनशिप रहा है बचपन से, और डैडी के साथ तो 1950 से रिलेशनशिप रहा है, तो मेरा तो फर्ज बनता है यार। बस मैं उनकी याद में आई हूँ। पहली बार आई हूँ क्योंकि मैंने पहली बार गाना गाया है। अब संगीत की इंडस्ट्री में मैं धीरे धीरे जुड़ती जा रही हूँ, जैसे जैसे मुझे लोगों के बारे में पता चलता जा रहा है, तो मैं चाह रही हूँ हर संगीत के कोई भी इवेंट हो तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। और बस मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। आगे मुझे हर संगीत के चीज़ों में बुलाते जाए, क्योंकि मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा संगीत से जुड़ना चाह रही हूँ, जितना जुड़ूंगी उतना अच्छा है। सुन के ही रफ़ी साहब और किशोर दा इन सबको सुन के ही मैंने सीखा है। तो बहुत सारे गाने हैं जो मेरे दिल के करीब हैं। कुछ गाने एक मैं गाता हूँ आपके लिए। एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो, कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। थैंक यू। मैं तो शाहिद जी की बहुत बड़ी कदरदान हूँ और ये बात उन्हें पता है। पिछले साल मैंने मिस कर दिया था, तो इस बार तो मैंने ठान ही ली थी कि चाहे शूटिंग से रिक्वेस्ट करके जल्दी आना पड़े, लेकिन ज़रूर आएंगे। और रफ़ी साहब तो इटर्नल है, ही इज़ लाइक इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ बॉलीवुड। और अगर शाहिद जी उनको ट्रिब्यूट देंगे तो क्या ही समा होगा, क्या ही मज़ा आएगा। इसीलिए मैं अपनी मम्मी को लेकर आई हूँ, क्योंकि पुराने गानों से इट्स जस्ट दैट इट ब्रिंग्स अलाइव द मोस्ट ब्यूटीफुल एरा ऑफ म्यूजिक, जो शायद हम भूलते और भूलते जा रहे हैं। और उनके फादर को ट्रिब्यूट है, ये तो और भी बहुत ही खूबसूरत बात है।
सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये अपने पिताजी की याद में आज ये शाम रखी है। बहुत कम होता है कि कोई बेटा अपने पिताजी को इस तरीके से याद करे, और कृष्ण कुमार जी जो हम सब जानते हैं कि इतने बेहद रफ़ी साहब के एडमायरर थे कि मतलब मैं उनको आज याद कर रहा हूँ। और शाहिद साहब उनके जो पुत्र हैं वो भी बहुत उम्दा गाते हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बधाई। और कृष्ण कुमार जी को मैं केवल आज याद कर सकता हूँ, और इस आज संगीत में शाम का पूरा लोगों तक उनकी याद बनी रहे ये अपेक्षा करता हूँ। थैंक यू। What better way of giving a tribute to your father by commemorating, his second anniversary with, with his in his own style, and remembering him with Mohammad Rafi ji. Wonderful. Looking forward to the concert, and yes, looking forward to the magical voice of Shahid Mali. Thank you. एक ऐसा एहसास, एक बहुत इमोशनल ट्रिब्यूट जो पेश कर रहे हैं, और दिल से है एकदम। वो पता चलता है कि इनके सॉन्ग्स हम जब से मैं पैदा हुआ उससे बहुत साल पहले से हम मेरे पेरेंट्स से हम सुनते आ रहे हैं, और मैंने भी अपने बचपन से सुना है। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इन सिंगर्स का, और अब इतने अलग तरीके से, इतने इमोशनल तरीके से ट्रिब्यूट प्लान किया और एग्जीक्यूट करा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सबसे ख़ास बात है कि ये जो गाने हैं ये दिल को छू जाते हैं। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं कंपेयर नहीं करूँगा, लेकिन मेरे फेवरेट तो हैं ये जो ओल्ड मेलोडीज़ हैं, जो हार्ट टचिंग है, हार्ट रेंडरिंग है, और समथिंग विच यू रियली लुक फॉरवर्ड टू, द लॉन्गिंग फॉर लव, अटैचमेंट ऑफ लव एंड द डिवोशन इन लव। आई थिंक वो एक चीज़ है जो स्टैंड आउट होती है इनके सॉन्ग्स में। एंड आई हैव नथिंग एल्स बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द होल टीम फॉर प्रिपेयरिंग सच अ फैबुलस हार्ट रेंडरिंग इवेंट। तो बहुत अच्छा लग रहा है, इमोशनली थोड़ा ओवरवेल्म फील कर रहा हूँ। It's so lovely and warm of something like this coming together, because and especially on a Friendships Day when I would be able to hear such lovely music and lovely tunes of our amazing people here. So a big congratulations, and it's just very heartful today to be here and be amongst everybody, all of us putting all our energies to this beautiful event. So thank you for having me.